Balance sheet position is given as follows. Balance sheet position given as follows. Balance sheet liability 13,014. Assets 2,000. For liabilities, write down share capital 2 lakhs, 3 lakhs, share capital 2 lakhs, 3 lakhs, general reserve 30,000, 40,000, profit and loss account 15,000, 14,000, secure loan 30,000 annual, creditors 40,000, 35,000, creditors 40,000, 35,000, provision for taxation 10,000 and 15,000, assets, asset side, yeah, assets, land and buildings 1 lakh, 1 lakh 20,000, machinery 1 lakh 10,000, 1 lakh 60,000, investment nil and 40,000, nil and 40,000, debtors 70,000, 40,000, closing stock 34,000, 30,000, thirty-four thousand and 30,000, cash 5,000, 4,000, goodwill nil and 5,000, goodwill nil and 5,000, preliminary expenses, preliminary expenses 6,000 and 5,000, 6,000 and 5,000. Total 3 lakh 25,000, 4 lakh 4,000 for both sides. 3 lakh 25,000 and 4 lakh 4,000. Additional information is also given. Dividend paid rupees 15,000 in the year 2014. Dividend paid rupees 15,000 in the year 2014. Second, other companies' assets. Other companies' assets
were purchased by giving rupees 1 lakh shares. Giving rupees 1 lakh shares. Assets contain rupees 20,000 for buildings, rupees 50,000 for machinery, and rupees 25,000 for trading goods. Rupees 25,000 for trading goods. Adjust number third. Rupees 10,000 other machinery were purchased. Rupees 10,000 other machinery were purchased. Other machinery were purchased. Rupees 5,000 depreciation on machinery. Rupees 5,000. 5,000 depreciation on machinery. Rupees 5,000 loss on sale of machinery. Fifth number. Rupees 500, sorry, yeah? Not 5,000. Rupees 500 loss on sale of machinery. Loss on sale of machinery. Machinery were transferred to general reserve. Were transferred to general reserve. Were transferred to general reserve. So that six adjustment. Rupees 10,000. Rupees 10,000 were provided for provision for taxation. Were provided for provision for taxation. Were provided for provision for taxation. Prepare for the year 2014. Prepare for the year 2014. A. Statement of increase or decrease in working capital. Statement of increase or decrease in working capital. B. Statements of funds from operation. Statements of funds from operation. Sources and application statement for the year ended for the year ended 31st December 2014. And D. Working notes. Working notes. Hello? Have you all written this problem? Yes, sir. Okay. So start the solution. सुरुवात करायची का आन्सर साठी? हॅलो, लिहिलाय का प्रॉब्लेम? सर्वांचा झाला का लिहिणं? सांगा. Yes, sir.
So start solution. Solution. Prepare statement showing changes in working capital first. फॉर्मेट बनाओ और मुझे बोलो कि हो गया सर. तैयार होने के बाद मुझे बोलना है कि हो गया. फॉर्मेट बनाओ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का. इस प्रकार फॉर्मेट बनाओ स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. As always, first column is for details of current assets and current liabilities. Second column is for amounts of previous year and current years. In second column, there are two inclusive columns, previous year and current year. Last column is for effect on working capital. Effect on working capital. In this column, there is also two inclusive column, increase and decrease. When you prepare this, please tell me. जब आपका प्रिपेयर करना हो गया होगा तो मुझे बताओ. फिर हम शुरू कर देंगे सॉल्यूशन. Okay. Okay, so start with the current assets. Where we found the current assets? Where we can found Balance sheet. balance sheet. So which are the current assets given in the balance sheet? Land and building is fixed asset, machinery is fixed assets, investment also fixed assets. Debtors is this current assets. Yes, debtor, closing stock, and cash. Yeah, these are the three current assets given in the problem. So all will be appear in the statement showing changes in working capital. यहाँ पर आएगी ये हमारे स्टेटमेंट में आ जाएगी अंडर द हेड ऑफ करंट असेट्स. यहाँ पर पहले करंट असेट्स लिख दो. करंट assets. We have found Sir, that. one is remaining preliminary expenses. No, Veda. It is not current assets. It is fictitious assets. Okay. So we never consider it as a current assets. It is not a current assets. Okay. Because preliminary expenses is expenses which is done before the commencement of the business, and it has a long term use. That's why it is not current assets. Okay. Yes, sir. फॉर्मेशन के समय जो कुछ भी खर्च करते हैं हम, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर करते हैं ना, उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं. जैसे कि हमें अगर कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करना है और उसके लिए जो कुछ भी सर्टिफिकेशन चाहिए, वो सर्टिफिकेशन बनाने में आने वाला खर्चा जो होता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में हम इंक्लूड करते हैं. तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और हम हर साल उसे डिडक्ट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं. तो ये हमारा करंट असेट नहीं है. In this problem we have three current assets: debtors 70,000, 40,000, closing stock 34,000 and 30, cash 5,000 and 4,000. Okay, so apply the rules. डेटर्स क्या हुआ है? डेटर्स में डिक्रीज हुआ है और डेटर्स हमारा करंट असेट से. what is the rules regarding current assets, changes in current assets? Which rules should be applied here?
कौन सा रूल यूज होगा, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कौन सा रूल यूज होगा यहाँ पर, बोलो जल्दी बोलो, आपको बोलना है। हेलो, Second rule is सेकेंड रूल, व्हाट इज decrease in current asset. Decrease. This rule is decrease in current asset causes decrease in working capital. It means yes, so 30,000 rupees, 30,000 decrease. okay, right. Someone else, closing stock, not Kesho stock, huh? uh, any other क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या हो, which rule should be applied here, डेटर्स के लिए हमने जो रूल्स यूज किया वही रूल्स यहाँ पर यूज होने वाला है। सेकंड, डिक्रीज इन करंट असेट मींस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हाउ मच इज द अमाउंट, डिक्रीज कितने से होगा, 4000। बाद में कैश है, कैश में क्या हुआ है और कौन सा रूल यूज होगा बताओ। वही सर। सेम रूल। वही रूल अप्लाई होगा। क्या कहता है रूल्स, डिक्रीज इन करंट असेट means decrease in डिक्रीज working इन capital, वर्किंग कैपिटल। by 1000। So we have got all the current assets, total because the total current assets, that is addition of all assets। कितना आता है देखो यहाँ पर, 70, 30, 1 lakh, 1 lakh 9,000। Okay, after that here 40, 30 and 4 कितना आता है, 74। Yes, sir. हाँ, तो राइट डाउन करो वहाँ पर 74। Okay, so that we go for current liabilities। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी गिवन है देखो प्रॉब्लम में, तो क्या द प्रॉब्लम, शेयर कैपिटल दिया गया है, ये तो फिक्स है, जनरल रिजर्व फिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैन नॉट कंसीडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ करंट लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन है, ये भी नहीं है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स Yes, हमारा only क्या, creditors. हाँ करंट लायबिलिटी है, यहाँ पर ले लेंगे हम करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स उसके अमाउंट के साथ, दोनों साल के अमाउंट्स लेने हैं वहाँ पर हमें। उसके बाद में क्या कहा गया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 10,000, 15,000। वी कैन कंसीडर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैन बी current liability or non current liability, but if there is a adjustment on it we can consider it only a fixed liability, okay, as a fixed liability, and here is the adjustment regarding the provision for taxation, so we cannot include it into the statement showing changes in working capital। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स क्या हुआ है वहां पर और कौन सा रूल्स अप्लाई होगा, बोलो चलो बोलो जल्दी, कौन सा रूल अप्लाई होगा वहां पर, सर डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। yes right, the rules regarding current liability says that when current liability decreases working capital will be increased, है ना। So how much is the amount, 5,000। टोटल करो उसकी और उसे कहो टोटल करंट लायबिलिटीज। कितना आएगा टोटल भी, यहाँ पर सेम आएगा 40,000, ये भी आएगा 35,000। अब आगे क्या है,
इसे ब्लैक कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट भी बढ़ जाएगा इसका और ओके. What is the next step in this schedule? Net वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें. कैसे करेंगे? करंट असेट्स माइनस, आपको बोलना है यार, बोलो कुछ तो बोलो यार. 1,09,000. सर वो लिख हाँ, के प्रॉब्लम होता कैलकुलेट करते हैं पहले. कितना आएगा? 1,09,000 माइनस 40,000. 69,000 sir. 69, राइट. 69. यस यस यस. इसमें कितना आएगा देखो? 39. 13. What does it indicates? क्या इंडिकेट करता है यहाँ? क्या हुआ यहाँ पर? Decrease in working capital, Decrease in rupees working 30,000. So write down here, decrease in capital. कितने से डिक्रीज हुआ है? 30,000 है ना. अब उसे बैलेंस करो. 69 से बैलेंस होगा, ये भी 69. अब इसे करो बैलेंस. डिक्रीज है तो अमाउंट किस में आएगा? इंक्रीज में आएगा. 35,000 and here also 35,000. So we have completed here statement showing changes in working capital with balances of 69,000 and 35,000 for increase or decrease column. ओके. यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि शेड्यूल में हम सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में ही सोचते हैं. ओके, सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी ही कंसिडर करते हैं. आवाज आ रही है ना मेरी? सो गए क्या सब? हेलो. Yes sir. हाँ बोलो ना यार, बोलो, आपको बोलना है. So what will be the next step? क्या करना है हमें अब? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी कैलकुलेट करना है. फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फॉर्मेट बनाओ. दोनों फॉर्मेट बनाना है आपको, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. आफ्टर दैट प्रिपेयर सम वर्किंग्स. वर्किंग्स भी बहुत सारे बनाने हैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट से, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें बहुत सारे वहाँ पर लेजर बनाने होंगे. कौन कौन से लेजर बनेंगे यहाँ पर बोलो मुझे. Share capital, provision for taxation, यस. machinery account, मशीनरी अकाउंट बनेगा, बिल्कुल. और कौन सा बनेगा? बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, है ना. बिल्डिंग अकाउंट भी, बिल्डिंग अकाउंट के बारे में भी कहा गया है वहां पर. yes, building account एक बनेगा. और ट्रेडिंग गुड्स का है, तो ट्रेडिंग गुड्स क्या होता है? ट्रेडिंग गुड्स मीन्स स्टॉक.
तो स्टॉक को तो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ परचेस किया है स्टॉक, इसलिए परचेस किया है, तो ट्रेडिंग के लिए परचेस किया है, तो वहाँ पर सोर्स बन जाएगा हमारा। तो उसके लिए कुछ खास अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो करंट असेट से रिलेट करता है। ओके, और हम लेजर जो बनाते हैं फिक्स असेट के लिए बनाते हैं। ओके, और टैक्सेशन बनेगा, है ना। डिविडेंड के तो हम दो इफेक्ट लेने वाले हैं। सो प्रिपेयर्ड ऑल दिस अकाउंट्स। फर्स्ट तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बनाओ, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहो या नेट प्रॉफिट को, प्रॉफिट फॉर द ईयर। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। वहां पर बनाने के बाद मुझे बोलो कि हो गया सर। फंड्स फ्लो में सोर्सेस ऑफ फंड्स होता है, और क्या होता है, क्या करते हैं हम वहां पर, लेस एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। यहाँ पर क्या करते हैं हम, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस, लेस क्या करते हैं हम उसमें से, नॉन ऑपरेटिंग Operating incomes. इनकम्स। अगर होगा तो हम वहां पर ले लेंगे। और बाकी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ। उसके बाद में बनेगा, कौन सा बनेगा बोलो, मिशनरी अकाउंट, मिशनरी अकाउंट भी बनेगा। और कौन सा बनेगा, वेडिंग अकाउंट बनेगा, लैंड एंड वेडिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, सभी अकाउंट्स बनाने हैं आपको। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनेगा, वो भी बनाओ। प्रॉब्लम देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से लेजर बनाने हैं हमें। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी बनाना है, और कौन सा बनाना होगा, देखो वहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाना होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाएंगे हम। और ओके ठीक है, इतने तो बनेंगे ही। अगर कुछ और बनते हैं तो हम देखेंगे बाद में, पहले तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल एक टूल है, यहाँ पर 3 लाख है, तो शेयर कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट है, बहुत बड़ी एडजस्टमेंट है। तो वहाँ पर हम शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, Debit side. The credit side. credit side, because it is an ability. So by balance brought down,
कितना है बैलेंस? 2 लाख है ना? Yes, 2 lakhs and 3 lakhs closing. टू बैलेंस, कैरी डाउन। कितना अमाउंट है? 3 lakhs। ओके, 3 lakhs है और 2 lakhs है। अब क्या किया है, क्या कहती है एडजस्टमेंट उसके ऊपर की, देखो। अदर कंपनीज असेट्स वर परचेज बाय गिविंग रुपीज 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स देकर अदर कंपनी के हमने असेट्स परचेज किए। असेट्स में कौन कौन से परचेज किए हैं वो दिया है। 20,000 इज फॉर बिल्डिंग्स, 50,000 फॉर मशीनरी एंड ₹25,000 फॉर ट्रेडिंग गुड्स। तो ये कहाँ जाएगा, ये सभी अकाउंट्स क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, सो राइट डाउन बाय rent and bedding account, बेडिंग अकाउंट, और बेडिंग अकाउंट भी कह सकते हो बाय मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बाय स्टॉक। बेडिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और स्टॉक। ओके, कितना अमाउंट है देखो बेडिंग का, 20,000 बेडिंग के लिए यूज हुआ। मशीनरी के लिए कितना हुआ देखो, बेडिंग के लिए 50,000 मशीनरी के लिए और स्टॉक के लिए 25,000। 50,000 और स्टॉक जो है, स्टॉक सॉरी स्टॉक 25,000। अब देखो वहां पर कितना हुआ, 3 lakhs एंड ये 2 lakhs है। ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है। ये 20, ये 50,000 एंड ये 25,000। कितना होता है देखो, ये तीनों का कितना होता है? 2,95,000। 2,95,000 होता है, लेकिन हमने तो असेट कितने का परचेस किया है? 1 लाख का परचेस किया है। यहाँ पर 1 लाख तो नहीं आ रही है ना, यहाँ पर कुछ और भी आना है। यस सर। हाँ, वहाँ पर 5,000 जो डिफरेंस है वो लिख दो। जो आइटम आएगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, जो कुछ भी होगा हमारा हिडन एडजस्टमेंट होती है कुछ, तो उसके अंदर जो कुछ भी हिडन एडजस्टमेंट वहाँ पर होगी तो देखेंगे हम, और बाद में उसे क्लोज कर देंगे। ओके, बाद में उसे क्लोज कर देंगे अगर होता है तो। जब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर। नेक्स्ट आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 30,000, 40,000, तो उसका भी अकाउंट ओपन करना है हमें। जनरल रिजर्व अकाउंट ओपन करो। जनरल रिजर्व अकाउंट, ये भी लायबिलिटी है। बाय बैलेंस कहाँ पर जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रेड साइड को जाएगा। कितना है? 30,000। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है देखो, 40,000। कितना है? 40,000। उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन सी है? उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन सी है देखो, 5th नंबर। ₹5,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है वो लॉस, तो कहाँ पर जाएगा? पहले तो हम जो कुछ भी लॉस होता था सेल ऑफ मशीनरी पर, कहाँ पर ट्रांसफर करते थे? एडजस्टेड अकाउंट को, एडजस्टेड प्रोविडेंट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते थे। यस सर। एडजस्टेड प्रोविडेंट लॉस अकाउंट के कहाँ पर जाता था? वो डेबिट साइड को। तो यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, तो ये भी जाएगा जनरल रिजर्व के
डेबिट साइड को। ओके, तो राइट डाउन हियर टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट ब्रैकेट में अगर आपको ध्यान में रखना है तो लिख लीजिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ट्रांसफर करना है ना हमें, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। कितना है 500 कर दिया। हेलो, ले आया है ना? यस सर। मशीनरी अकाउंट भी हमने ओपन किया है। क्या है क्या मशीनरी अकाउंट? देखो मशीनरी अकाउंट भी ओपन करना है हमें, तो ओपनिंग बाद में लिखेंगे, लेकिन अब ये जो इफेक्ट है वो यहाँ पर कर लेते हैं। बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है ना लॉस, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट करो वहां पर, क्योंकि हमने इसे ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व अकाउंट को। कितना है 500। ठीक है, दोनों इफेक्ट हमने इसके लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब जनरल रिजर्व अकाउंट एक क्लोज कर देते हैं। कितना आता है देखो 40,500 आएगा, और इधर कितना है 30,000। 10,500। हाँ, और उसे कहो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो न्यू ट्रांसफर, न्यू ट्रांसफर। जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर लिख दो। कितना आता है देखो 10,500। कहाँ पर जाएगा ये 10,500? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। यस, डाल दो फिर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ओके, कितना है 10,500। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ तक तो हम आए हैं। तीसरा आइटम हमने ले लिया है, सॉरी दूसरा आइटम। अब बाकी जो आइटम्स है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे 2 लेक्चर लगने ही है, तो हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हेलो, ओके हम सर। इसे कल कंटिन्यू ओके करेंगे। हाँ, इसी के साथ आएंगे अब कल भी। ओके, कल फिर एक बार इस पर चर्चा करेंगे हम, जो प्रॉब्लम है ना।